آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے مرحلے میں پیپلز پارٹی کی ہار کے بعد بلاول بھٹو کے الزامات کی جعلی چیئرمین نے دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ ریاست فیصلہ کر لے کہ قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ مظفر آباد میں جلسے سے خطاب میں کہا ریاست سوچے کہ کشمیر میں کیا کیا جا رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار مرحلوں میں الیکشن کرائے گئے۔ یہ آزاد کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر نہیں۔ مجبور نہ کریں کہ ہم اعتماد کھو دیں۔ واضح کیا جھکیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، اپنی 100% نشستیں واپس چھینیں گے۔ ریاست پاکستان نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمارے لیے قومی مفاد زیادہ اہم ہے یا نون لیگ کا مفاد۔ نون لیگ کے مفاد میں ہم کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ نون لیگ کے مفاد کے نام پہ آپ کشمیر کے ساتھ کر کے آ رہے ہو، دھاندلی کروانے کے لیے آپ نے یہ فیزز کروایا۔ یہ آزاد کشمیر ہے، ہم کبھی بھی اس کو مقبوضہ کشمیر نہیں بننے دیں گے۔ ہمارا 100% سیٹیں ان سے چھین کے رہوں گا۔ ہم پرامن رہتے ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، ورنہ میں بھی صدر زرداری کا بیٹا ہوں، میر شاہنواز بھٹو اور میر مرتضی بھٹو کا بھانجا ہوں۔ میں سیاست اگر کرنا چاہتا ہوں تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے مجبور نہ کرے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اعتماد اٹھ جائے۔ نون لیگ نے بلاول بھٹو کے الزامات کو کشمیری عوام کے مینڈیٹ کی توہین قرار دیا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور طارق فضل چودھری نے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ کہا پی پی چیئرمین بھول گئے کہ اس وقت ریاست میں کس کی حکومت ہے۔ آپ گلگت بلتستان میں جیتے تو الیکشن شفاف تھے، آزاد کشمیر میں نتائج مختلف آئے تو الزامات لگانے لگے۔ بچگانہ طرز عمل چھوڑیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے واضح مینڈیٹ کے ساتھ مسلم لیگ نون کو کامیاب کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی الزام تراشیاں انتہائی غیر جمہوری اور نامناسب ہے۔ آزاد کشمیر کے عوام کے حق کے مینڈیٹ کی توہین ہے۔ الزامات لگاتے ہوئے یہ بھول گئے کہ کشمیر میں حکومت کس کی ہے۔ اگر گلگت بلتستان میں آپ جیت جائیں تو وہ تو بہت شفاف الیکشن ہے، اور اگر کشمیر کے اندر آپ کو شکست ہو جائے، وہاں کے عوام آپ کو مسترد کر دیں تو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ الیکشن کی شفافیت کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ ایک واضح برتری جو پاکستان مسلم لیگ نون کو حاصل ہوئی ہے وہ ہمارے سیاسی مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ جو 2 مرحلے رہ گئے ہیں اس میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اکثریت لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا خطاب چوری اور سینہ زوری تھا۔ آزاد کشمیر میں بدترین دھاندلی کی گئی۔ نون لیگ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ پنجاب اور وفاق کے بعد آزاد کشمیر میں بھی جعلی مینڈیٹ لینا چاہ رہی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا رد عمل، مریم نواز کو چیلنج دیا کہ استعفیٰ دے کر پنجاب کے کسی بھی حلقے سے الیکشن لڑ لیں، آپ کو ووٹ نہیں ملے گا۔ جو اقتدار کا غرور و تکبر ہے اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ اپنا خطاب کیا۔ جس طریقے سے خیراتی اقتدار پہ پی ایم ایل این کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے فارم 47 پہ، وہ پورے پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے۔ ایک چوری ایک سینہ زوری، آپ نے پہلے پنجاب کے عوام کا حق چھینا اور اب آپ جو ہے وہ کشمیر میں زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کھلے عام اسلحے کی نمائش کی گئی اور پیپلز پارٹی کے ورکر کو شہید کیا گیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے نہ تعزیت کی نہ افسوس کی، اور میں ایک اور کھلا چیلنج کرتا ہوں، آپ استعفیٰ دے دیں چیف منسٹر صاحبہ اور دوبارہ کسی بھی الیکشن سے پنجاب کی کسی ایک کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑ کے دکھا دیں۔ پنجاب کے عوام آپ کو کسی بھی حلقے سے کامیاب نہیں کریں گے۔ ہماری لیڈرشپ کی جو ہے وہ جان کی نذرانے دیے۔ آپ کی لیڈرشپ جو ہے محترمہ ہمیشہ مشکل وقت میں معاہدے کر کے ملک سے بھاگی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج مکمل ہو گئے ہیں۔ کون سی سیاسی پارٹی آگے رہی، کون سی پیچھے رہی، الیکشن کے نتائج کی کیا صورتحال تھی، تمام تر تفصیلات آپ کو سمجھاتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 9 نشستیں جیت کر میدان مار لیا۔ پیپلز پارٹی دوسری بڑی جماعت رہی۔ پی پی نے 4 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ حلقہ LA1 میرپور 1 میں مسلم لیگ نون کے اظہر صادق 15,427 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ LA2 میرپور 2 میں پیپلز پارٹی کے قاسم مجید نے 12,952 ووٹ لے کر فتح سمیٹی۔ LA3 میرپور 3 سے پیپلز پارٹی کے یاسر سلطان 11,676 ووٹ لے کر جیت گئے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو LA4 میرپور 4 میں مسلم لیگ نون کے رخسار احمد نے 20,172 ووٹوں کے ساتھ یہ نشست حاصل کی۔ LA5 بھمبر 1 میں
मुस्लिम लीग नून के वकार अहमद 30,259 वोट लेकर कामयाब ठहरे, जबकि हल्का LA6 भिंबर 2 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रज़ाक चौधरी 32,039 वोटों के साथ लीड करते नजर आए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। LA7 भिंबर 3 में मुस्लिम लीग नून के तारिक फारूक ने 35,287 वोटों के साथ ये नशिस्त अपने नाम की। हल्का LA8 कोटली 1 में पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक 19,535 वोट लेकर जीत गए। हल्का LA9 कोटली 2 में मुस्लिम लीग नून के उमैर नईम 31,080 वोट लेकर फाते रहे। LA10 कोटली 3 में पीपल्स पार्टी के यासीन चौधरी 12,421 वोट लेकर फाते रहे। थोड़ा सा और आगे बढ़े। हल्का LA11 कोटली 4 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ 26,190 वोट लेकर जीत गए, जबकि हल्का LA12 कोटली 5 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रियासत खान ने 35,168 वोट लेकर कामयाबी अपने नाम की। हल्का LA13 कोटली 6 में मुस्लिम लीग नून के अय्याज अहमद 21,856 वोट लेकर फाते रहे। मुस्लिम लीग नून ने धांधली करके इंतखाबी अमल को दागदार किया। चौधरी मोहम्मद यासीन के हल्के में ठप्पे लगाए गए। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का कहना है कि प्रिजाइडिंग अफसरान ने खुद बयानात रिकॉर्ड करवाए कि उन्हें यरगमाल बनाकर ठप्पे लगाए गए। चढ़ोई, सहनसा और नकियाल के नताइज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर ने इलेक्शन कमीशन से फौज की निगरानी में री पोलिंग कराने का मुतालबा कर दिया। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकआउट बहुत सोच समझ कर किया। इंतखाबात में टर्नआउट 5 से 7% रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, कहा बानी PTI से मुलाकात ही हालात में बेहतरी की कुंजी है। अगर मुलाकातें शुरू हुई तो हालात बदल जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में बॉयकॉट का फैसला हमने कर दिया और आपने देखा कि लोग टर्न आउट के लिए नहीं आए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 5 से 7% मैक्सिमम टर्न आउट है, जो ना होने के बराबर है। ऐसे में आप इलेक्शन नहीं कराते। स्टैंड बाय टू से कि ये जो हमने फैसला किया बहुत सोच समझ के एक सियासी फैसला हमने किया हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्शन आज हो जाता है, कल हो जाता है। इलेक्शन दोबारा भी हुए थे, 77 में इलेक्शन हुए, दोबारा नहीं हुए। कश्मीर पे दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी सियासत और इस नहज तक पहुंचाया। एक कहता है मैं लाहौर बनवा रहा हूँ, दूसरा कहता है मैं कश्मीर बनवा रहा हूँ। कश्मीर ना कश्मीर बनेगा और कश्मीर नहीं लाहौर बनेगा। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का शारक है और पाकिस्तान का शारक बनेगा। 280 दिन से ज्यादा हो गए, मुलाकातें नहीं हो रही और मैं तो समझता हूँ कि ये मुलाकात इस मुल्क की बेहतरी की कुंजी है। अगर मुलाकातें शुरू होगी तो आप देखेंगे हालात बदल जाएंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली हुई या बदनज़मी, लेकिन पंजाब में तो बद इंतजामी अरूज पर है। गुज़िश्ता सैलाब को 1 साल हो गया मगर बरसाती नालों के बंद मजबूत ना बनाए जा सके। नतीजा, लाहौर के करीब फिरोजवाला में नाला भेट का बंद टूट गया। हर तरफ तबाही, सड़कें ज़ेर-ए-आब, दर्जनों आबादियां मुतासिर, लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। हर तरफ तबाही, पानी में डूबे घर, बेबसी की तस्वीर बने शहरी। ये कोई गांव देहात नहीं बल्कि लाहौर के करीब आबाद शहर फिरोजवाला है, जहां पानी ने तबाही की दास्तान लिख दी। नाला भेड़ का बंद टूटने के बाद आबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए। पठान कॉलोनी, भल्ला, डसनवाल और गिरदोनवा के इलाके शदीद मुतासिर हैं। घरों के अंदर अच्छा खासा पानी है, हम लोग घर छोड़ के नहीं जा सकते, पीछे से चोरियां होती हैं और बच्चे हैं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। बाहर अंदर जाएं तो पानी के अंदर अच्छे खासे सांप है। सारे घर डूबे में, ना या खाने पीने का सामान है, ना कुछ है, ना कोई रेस्क्यू है। यहाँ पे हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे लोगों की मदद की जाए। ठीक है, हमारे इधर 5 दिन से पानी आ रहा है, हमारे एक कोई हुकूमती नुमाइंदा हमारे पास नहीं पहुँचा, ना कोई कैंप है इधर। समा टीम असल जमीनी हकायक दिखाने सबसे पहले पहुँची फिरोजवाला, तो शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। समा न्यूज़ वालों को हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शायद आप लोगों की वजह से जो इदारे सो रहे हैं शायद वो जाग जाए, कुछ इधर तवज्जो दें। और हो सकता है मरियम साहिबा को भी कश्मीर से कुछ वो उधर से फारिग हो जाए तो इधर भी तवज्जो दें, क्योंकि वो तो इधर इंतखाबात में फंसी हुई है। न्यू फिरोजवाला के 14 इलाके पानी की लपेट में हैं। हजारों अफराद महसूर, छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं।
सरकारी रेस्क्यू इदारों के बजाय फलाई तंजीमें इलाके में ज्यादा मुतहर्रिक हैं। हजारों अफराद मदद और नकल मकानी के मुंतजिर हैं। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ सामिया सईद, समा, लाहौर। फिरोजवाला में वक्त के साथ साथ पानी मजीद बढ़ा है। पठान कॉलोनी का भी जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग घरों में महसूर होकर रह गए। मजीद हमें बताएंगे कासिम अरशद। जी कासिम। अरे बिल्कुल, फिरोजवाला शेखुपुरा के कई जो देहात हैं वो ज़ेर आब हैं। इस वक्त हम पठान कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ कई फीट पानी है और जो अजीज़ व अकारिब हैं वो अपने प्यारों को खाना देने के लिए यहाँ पर कश्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो खाना देने के लिए स्पेशली आए हैं। इनसे पूछते हैं। पठान कॉलोनी ना 10-12 फुट उनका मकान ना डूब गया। उधर तीसरी मंजिल में ऊपर बैठे हुए हैं। कज़न का उन्होंने खाना देने जा रहे हैं। 3 निक्के बच्चे ने, उनको साथ ही लेके आएंगे। मेरे छोटे बच्चे हैं कज़न के, उनको मैं लेने के लिए जा रही हूँ कि वो हमसे देखे नहीं जा रहे, क्योंकि उनके साथ काफ़ी बैड लक है। 7 से 8 फीट उनके घर पानी दाखिल हो चुका है। तो यहाँ के मकामी अफराद भी हैं, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द उनको ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद भिजवाई जाए, जिनमें खाना और पानी है वो फराहम की जाए ताकि उनके लिए जो अंदर गुजर बसर है वो आसान हो सके। जी कासिम, आपका शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं, ईरान चाहे बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आबने हुर्मज़ हमारी गिरफ्त में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा, ईरान के साथ अब हमारी पोजीशन बहुत मजबूत है। हम ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों से गुरेज करेंगे। चाहें 1 से 2 घंटों में ईरान के बड़े पुल तबाह कर सकते हैं, बिजली घरों को निशाना बना सकते हैं। ईरान को अब मुआहदे की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दूंगा। अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान में मुकर्ररा फौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। ईरान की नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिल शिकस्त है। ईरान का पहाड़ी जोहरी मकाम कोहे कुलांग ज़्यादा बड़ा मसला नहीं कि उसे जानने के लिए नेतन्याहू की ज़रूरत पड़े। अमेरिकी सदर ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियती अरकान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई जारी रखने का मुतालबा कर रहे हैं। जो मुल्क ईरान के मुंजमद असासों से पैसे लेगा, उसके जहाज़ों को आबनर हुर्मुज़ से गुजरने नहीं देंगी। ईरानी फौज का 2 टूक ऐलान वाज़े कर दिया। अमेरिका की किसी भी गैर कानूनी बहरी नाकाबंदी की कोशिश को इलाकाई तनाज़ा मजीद बढ़ाने के मुतरादिफ समझा जाएगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा कि ईरान मसाइल और इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है, मगर अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो मुल्क का भरपूर दिफा करेंगे।